Good morning, students. So this video is about Introduction to Database Part 2. So in our previous video, you have learned about the basics of the database and what is the mean of database. Then you know about that what is the DBMS, Database Management System. And we just discussed about that the need for the DBMS and some advantages of DBMS, that why we have to use that database management system. So in this video, you are going to learn about these following topics, like a component of the database, which is a table, queries, form, reports. And then you will know about the type of the database. And the last, you will know what is the mean of a relationship. So without wasting much time, we just go for this video. So let's begin with this video. First of all, we have to know about that what is the component of the database. Okay, so we just discussed in the previous slide that a table, queries, reports, and forms are the some component of the database. So first, we will discuss about that database contain a specific structure to store the data. Okay, and what is the structure that? So let's study some terminology used in a database that will help us in getting acquainted with the functioning of the DBMS, like table, queries, reports, and forms. So these are some component of the database that we will discuss about it in our next slides. So first of all, we have to know about what is the mean of table. So in your journal life, you are very well known about the table, that why we are use that table in our study. Okay, so we use to store some particular data in the table form, which is in an organized manner by the row and column. Okay, so the table are the building block of the database. They store complete data in a structured manner. A table is stored data in the form of row and columns called records and the fields respectively. So whenever we are talking in the terms of database or the database management system, so that time the all the data is stored in a table of form of table. So that time the table rows is known as a record, and the columns of that table will known as a field. So every table has a finite number of column, but it can have infinite number of rows. Okay, so whenever we are using any type of database, okay, like MS Access or whatever you want to use, so there may be finite number of the column, which is known as a field, and then we can store infinite number of the rows in that particular table. So now we will discuss about the some elements of the table, that the sub part of the table, which are fields, records, and data. Okay, so we just discuss in this slide that record, fields, and what is the mean of data. So we will discuss here. Okay, so what is the mean of field? So field is what the all column in a table is called field. ओके, सो जब भी हम लोग बात करेंगे एक डेटाबेस के अंदर टेबल की, तो जब हम लोग किसी भी एक टेबल में कॉलम्स, तो हम लोग सब जानते ही हैं वर्टिकल वे में हम एक पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी एक टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं. ओके, so in the term of DBMS or database, we will call that field as, we will call that column as a field. So a field describe a particular attribute of all the records in a table. For example, a field roll number of a student will store the roll numbers of all the students and will be common attribute of every student. ओके, सो अगर सपोज करो कि आपकी टेबल के अंदर पर्टिकुलर अलग अलग कॉलम्स है, जैसे फर्स्ट कॉलम रोल नंबर हो गया, सेकंड नेम, एंड थर्ड वन इज फॉर द डेट ऑफ बर्थ. ओके, सो जो रोल नंबर वाला फील्ड है, या फिर हम लोग अभी आप उसको कॉलम बोल रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल रोल नंबर ही स्टोर करते हैं. हम लोग नेम वाले फील्ड में नेम ही स्टोर करेंगे, और अगर डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम जो है उसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ ही स्टोर करेंगे. ओके, सो the type of the data in a particular field will be common to the that particular table. Okay, now records. So what is the meaning of record?
So the row in the table are called record. A record content values for the all the field that belong to a single person or an object. Okay. तो आपको पता है कि हर जो पर्टिकुलर रो होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर लो या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर लो, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर रो में उस पर्टिकुलर पर्सन की पूरी डिटेल एंटर्ड होती है। जैसे सपोज करो कि कोई टेबल है और टेबल के अंदर अगर आप स्कूल की अगर कोई टेबल है उसमें रोल नंबर कॉलम है, फिर नेम है, फिर डीओबी है, फिर एड्रेस है, फिर फोन नंबर है, ठीक है। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो को अगर आप लोग देखते हो तो उस रो के अंदर एक उस पर्टिकुलर पर्सन की पूरी डिटेल लिखी होगी, लाइक रोल नंबर, नेम, डीओबी एंड मोबाइल नंबर। Okay, so for example, when we enter the data for all the fields such as a roll number, name, marks, etc., for given student, it create a new row in a table which is called record. Okay, so whenever we are inserting the data about any student or any whenever we are talking about any object, okay, so जब भी हम लोग नई values को store करते हैं तो वहाँ पे एक नई row create होती है. Okay, so we will do this example in our next video. In that video we will use MS Access for the practice manner. Okay, now data. So what is the meaning of data? So it is also a subset of the table. So data is what a set of character that represent a valid value is known as a data. Okay, so जो भी आप लोग टेबल, जब आप लोग टेबल फॉर्मेट बनाते हो तो जो भी एंट्री आप उसके अंदर करते हो, ठीक है, एक्सेप्टिंग दैट हेडिंग ऑफ कॉलम, ओके, उसके अलावा जो भी आप लोग उसके अंदर वैल्यूज एंटर करते हो, तब वहां पे हम लोग उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं. ओके, वॉट एवर इट इज, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, द डेट ऑफ बर्थ, ओके, वो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो हर एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेटा बोलेंगे. ओके, बट एक्सेप्ट दैट व्हाट, कि आपका जो रो हेडिंग बोल लो या फिर आप कॉलम हेडिंग को बोल लो, ठीक है, उनके अलावा जो भी वैल्यूज उसके अंदर एंटर होती है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीप्ति, ओके, 3 Dipti, 19, 88, 70 are the values of for the specific field of the table. Okay, so in that table, okay, so in this table you can see, here you can see that all these, okay, so all these value like 1 2 3 roll number, Sandeep, Nitin and Dipti. Okay, so जो ये आप पूरा जो ये सेक्शन देख रहे हैं, ये सारा क्या है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेटा स्टोर है, ठीक है. इसको हम लोग डेटा नहीं बोलेंगे, ये जो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन हिंदी है, ठीक है, इसको हम लोग डेटा नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग फील्ड की हेडिंग बोल सकते हैं. ओके, और जो ये अंदर इसके जो बाकी सारी चीजें हैं, जैसे संदीप, नितिन, दीप्ति और ये जो भी मार्क्स हैं इनके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं. ओके, सो आई होप यू आर वेरी वेल नोन अबाउट फर्स्ट component of the database, which is table, and the subset of the table, which is field, record and data. Okay, so now next is queries. Okay, so this is our also this is also a component of a DBMS, which is query. So what is the meaning of query? So as the name suggested, query are used to ask question from the database. Okay, a database store vast amount of the data, but query will help us to retrieve the filtered data based upon some condition. Okay, so अगर आपने एक पर्टिकुलर पूरी वैल्यूज को, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आपके फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर सपोज बहुत सारे नंबर सेव है ना, वी आर कंसिडर दैट यू आर हैविंग मोर देन 500 कॉन्टेक्ट नेम इन योर कॉन्टेक्ट लिस्ट. ओके, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट नंबर पे अगर कॉल करना है तो आप लोग उस पर्टिकुलर इस लिस्ट को स्क्रॉल नहीं करते हो. सपोज किसी का नाम मनोज है और आप लोग ए से उसको मनोज को, अगर मनोज को कॉल करना है तो आप लोग उसको स्क्रॉल नहीं करोगे. आप क्या करोगे, यू आर जस्ट टाइप दैट मनोज इन द सर्च बार. ओके, हाँ, जैसे ही आप लोग सर्च पे क्वेरी पे सर्च बार में जैसे आप लोग मनोज लिखोगे तो वहाँ जितने भी अ, मनोज वाले नेम्स जो कांटेक्ट होंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, एंड जिसको भी आपको कॉल करना है आप टैप करते हो और कॉल कर लेते हो. ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्वेरी की आपकी कांटेक्ट लिस्ट से कि आपको क्या चाहिए, जितने भी कांटेक्ट नंबर सेव है उसमें से जो मनोज नाम का जो कांटेक्ट नंबर है वो मुझे डिस्प्ले करे. ओके, सो दिस इज द बेसिक मीन ऑफ क्वेरी. आया समझ? So query are also used to perform action such as a delete, update, and etc.
on the data based upon the some criteria or you can say condition. Okay, so query हम लोगों को क्यों यूज में, क्वेरी का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको. ओके, सो क्वेरी जो हम लोग यूज करते हैं, ओके, सो वी कैन यूज द क्वेरी फॉर द फिल्टरिंग द डेटा फॉर द डिस्प्ले. ओके, अगर हमको देखना है केवल डेटा को तो हम लोग क्वेरी यूज कर सकते हैं. ओके, एक पर्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करके हमको कोई डेटा किसी भी डेटाबेस के डेटा के अंदर अगर हमको कुछ एडिट करना है तो हम लोग क्वेरी यूज कर सकते हैं, हमको डिलीट करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, सो क्वेरी कैन बी यूज in many ways for the filtering our data. Okay, so next is form. So what is the mean of form? Okay, so form are user friendly interface that facilitate the process of the entering data in a table and query. Okay, a form has an interactive interface that accept the data from the user and forward it to the corresponding table or the query. ओके, सो फेम बेसिकली, फॉर्म बेसिकली क्या है, बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है जिसमें आप लोग क्या करते हो, आपको एक पर्टिकुलर जैसे कोई भी आपने अगर जीमेल की आईडी बनाने के लिए अगर कोई फॉर्म जैसे पेज पे हम लोग एंट्रीज फिल करते हैं तो जस्ट लाइक इट, जब हम लोग एमएस एक्सेल यूज करेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्म करके एक फंक्शन होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको एक डिस्प्ले प्रोवाइड कर देगा, आप लोग उस पर्टिकुलर डिस्प्ले में आप लोग वन बाय वन एंट्री कर सकते हैं. ठीक है, फॉर द inserting data into the table or you can use it for the query also. Okay, so this is the mean of query form. Now report. So what is the mean of report? So just like your report card, okay, it will display or it display your performance for the entire year. So form report also we use for that purpose. So report are used to display the selected data in a printable format. Reports collected summarized data from one or more table queries and organized in a printable form. ओके, सो रिपोर्ट बेसिकली क्या है, लोगों ने जैसे ही डेटा को फिल्टर है, ठीक है, और फिल्टर करने के बाद में जो डिस्प्ले होगा, ओके, सो डिस्प्ले में हम लोग एमएस एक्सेल में हम लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से हमने जो भी हमारा डेटा जो हमको चाहिए था वो डिस्प्ले हो रहा है. बट अगर सपोज करो हमको उसको प्रिंट करना है, ठीक है, हमको अगर उसको प्रिंट करना है या फिर हमको उसकी कोई एक रिपोर्ट सपोज करो फाइल जनरेट करनी है, so that time we can use this function which is known as a report. Okay, it is only used for the display the data into printable form. Okay, so these are the component of the database. So now I think you are very well known about the component of the database. So next is what, so we will discuss the types of the database. Okay, so we have the two type of database. First one is flat file database and the second one is relational database. So first one is flat file database. So what is the mean of flat file database? So it is a relatively simple database system which store all the data in a single table. Okay, so in that database we store all the data in a single table. A flat file refer to data files that contain record which have a small fixed number of the field without any structured relationship. So like फॉर एग्जाम्पल एम एस एक्सएल. ओके, सो जैसे ही आप लोग एम एस एक्सएल यूज करते हो पर्टिकुलर चीज को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो वी कांट यूज इट फॉर द ह्यूज storage of the data. Okay, we just use it for the storing the less amount of data or for performing the simple or some calculation on that over the data. ओके, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी एक एक्सेल फाइल को हम लोग किसी दूसरी एक्सेल फाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं या कोई एक रिलेशनशिप नहीं बना सकते. ओके, सो वहां पे हम लोग इस टाइप की जो डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस. ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस. तो फ्लैट फाइल और इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हम लोग डेटाबेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टेबल्स है उनको कनेक्ट कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं किसी भी एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर. Okay, so a relational database is a type of a database that store the several table. Okay, so एक तो डिफरेंस ये हो गया कि हम लोग वहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेबल हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन एक्सेल फाइल. ओके, बट आजकल जो एक्सेल आ रहा है, ठीक है, अपडेटेड वर्जन में हम लोग वहाँ पे मल्टीपल टेबल स्टोर कर सकते हैं. बट फिर भी अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन की कि रिलेशनल डेटाबेस और एक्सेल बोल लो या फिर फ्लैट फाइल अगर आप लोग डेटाबेस की बात कर रहे हो, तो हम लोग एज कंपेयर टू एक्सेल और एज कंपेयर टू फ्लैट फाइल we can store the huge amount of data in the relational database. Okay, so that's why we are having this ms access, ms excel, okay, and any other
सॉरी, एमएस एक्सेल नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओके, ओरेकल एंड all other are the example of the database. Okay, so where we are, so these table are the related to the one another in a such a way that whenever there is a need, the data can be joined and information can be accessed from them at once. Okay, so the relationship between the different table can be defined by the common field. The main advantage of using relational database is that we are not required to enter the respect repetitive information in the table again and again, so which in turn save time. Okay, so actually होता क्या है कि हम लोग जब भी रिलेशनल डेटाबेस हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोगों को क्या है कि एक फैसिलिटी मिलती है कि we are not required to the enter the repetitive information in the table again and again. We just do in a less effort and less time. So I think these are the example of the relational database like Oracle, Base, MS Access and MySQL. Okay, यहाँ आपको SQL दिख रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन हम लोग इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं सीक्वल्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीन ऑफ रिलेशनशिप. अब आपने देखा कि रिलेशन डेटाबेस तो जाना ही है, ठीक है. सो बट बेसिकली इसके पीछे मीनिंग क्या है? सो व्हाट इज द मीन ऑफ रिलेशनशिप? So relationship are like that associate with a field in a table with a field in another table. Okay, in Access you will store the data in a multiple table which are related to one another in a such way that if there is a need, so data can be joined from these table and information can be retrieved. Okay, so a relationship work by matching the field with the same name in a both table. In most case, these matching field are primary key from the one table that uniquely identify each record in second table. ओके, सो बेसिकली मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो हम लोग देखने वाले हैं, क्या है कि रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम लोग जो डेटाबेस के अंदर जब हम लोग वैल्यूज को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो हम लोग अलग अलग टेबल में स्टोर कर सकते हैं. ओके, फॉर द फॉर आर वे फॉर वे टू द कन्वेंस. ओके, कि जैसे अगर सपोज करो कि हमको पूरी एक बड़ी टेबल ना चाहिए, हमको एक शॉर्ट शॉर्ट टेबल करके अगर चाहिए, ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिखेंगे, दो टेबल के एग्जांपल दिखेंगे कि इसमें टीचर्स इंफॉर्मेशन है और टीचर्स डिटेल है. टीचर इन्फॉर्मेशन में टीचर आईडी है, टीचर नेम, टीचर एड्रेस एंड स्कूल नेम ये दे रखा है, ठीक है. और दूसरी दूसरी जो टेबल है सेकंड वाले में, इसमें टीचर आईडी, सिटी और कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है. तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो डिफरेंट टेबल हमने यहाँ पे ले लिए. ओके, तो अगर सपोज करो कि मुझे पूरी डिटेल चाहिए किसी भी एक टीचर की, ठीक है, जो मुझे चाहिए होगी इन्फो टेबल से भी और डिटेल टेबल से भी, ठीक है. सो दैट टाइम when we are using the relational database, okay, relationship database, so हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं? हम लोग दोनों को ज्वाइन करके एक सिंगल क्वेरी से हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरी की पूरी डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं. और ये जो क्वेरी है, ये जो पूरी की पूरी जो डिटेल हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ये हम लोग किसकी हेल्प से कर पाएंगे? ओनली इन द रिलेशन डेटाबेस में. ओके, बट ये आपका जो वे ऑफ क्वेरी है, ये हम लोग फ्लैट फाइल में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट फाइल एंड रिलेशन डेटाबेस. ओके, अभी ज्वाइन कैसे होता है? ठीक है, कि अगर सपोज करो मुझे टीचर आईडी जिसकी 101 है, ठीक है, मुझे उसकी फुल डिटेल चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों को 101 दिख रहा होगा और ये इसकी डिटेल यहाँ पे है मिस प्राची की, और यहाँ पे बाकी की डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है. तो क्या करते हैं ये लोग, ज्वाइन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे जो सिनेरियो होता है ज्वाइन करने का, वो होता है क्या है कि दोनों टेबल्स के अंदर देखो एक टीचर आईडी का फील्ड क्या होता है? कॉमन होता है. ओके, हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी की. ओके, क्योंकि ये क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है, ठीक है. यहाँ पे आपको कभी भी जो भी प्राइमरी कीज होती है वो आपको कभी भी रिपीट नहीं मिलेगी. जैसे पूरी स्कूल के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट से मैच नहीं करेगा, ठीक है. रोल नंबर कैन बी मैच विद अनदर क्लास, ठीक है, बट योर रजिस्ट्रेशन नंबर विल नॉट मैच फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट इन योर स्कूल. ओके, तो आपकी स्कूल के अंदर किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच नहीं करेगा. सो दैट टाइम वी कैन से दैट इन दैट पर्टिकुलर टेबल जहाँ पे आपका जो पूरा डेटा स्टोर है, वहां पे प्राइमरी की क्या है? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है.
ओके। और वहाँ पे एक और चीज होती है कि हम लोग उसको नल भी नहीं रख सकते, मतलब यहाँ पे आप लोग उस टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, आप लोग जो कॉलम है उसको क्या नहीं कर सकते हो, ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हो। ओके। सो विद दैट, with the help of these primary key, we can join the table in the database, और फिर उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, और रिलेशनशिप बनने के बाद में हम लोग पर्टिकुलर किसी भी एक टीचर या किसी भी एक आईडी की पूरी डिटेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल वे of the relationship, that how we can develop or how we can use it. Okay. So I think it's enough for this session. So we have completed this lesson in this class. So in our next video, we will see the MS Access, that how we can open and how we can use the MS Access for the storing or for the creating a database. So till then, stay happy and stay safe. Thank you.